Hi everyone, welcome to AI Exam B where you can prepare 50% faster. And this session is especially dedicated towards your English section where we will talk about how to streamline your preparation in order to score maximum marks in insurance examinations. If we basically talk about some of the important topics which we need to make sure that we completed before exam and we have ample amount of questions like we have practiced on them are as follows, guys. The first one is like from where we are expecting short questions is your RC, which you can also say as a passage question, where we can expect like 5 to 7 questions out of it. The second topic is like which is very much in trend, and that is word swapping. Apart from that, we have some questions on fillers as well. Like these days you can expect like instead of single filler, sometimes we are also getting double fillers questions too. Well, like while maybe not today, but in the upcoming sessions we are going to talk about all these pattern of questions, everybody. Next topic where we will let's say put our focus on will be our error spotting question. Like error spotting is like one such topic जो सदाबहार question अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगी. I think all the students who are preparing for any competitive examination have definitely come across this one topic, right? Apart from that, guys, we can also expect questions from parajumble as well as sentence jumble. Like either of the questions might appear in front of us. इसके अलावा हम क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका जो है ना पूरा का पूरा हमारा फोकस रहेगा इन दी अपकमिंग सीरीज, गाइज. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट लाइक मच इन टर्म्स ऑफ दैट, आज की सेशन को शुरुआत करते हैं. आज के सेशन में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रेफर कर रहे हैं. पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एरर स्पॉटिंग के ऊपर एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स fillers based question. So let's start with the very first question, everybody. I would definitely want you all to solve this and it would be quite good that आप अपने question का आंसर यहाँ comment section में भी मुझे दें. Okay? पहला क्वेश्चन है, पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एनी एरर इन इट. द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट वी डोंट हैव टू लुक फॉर मोर देन वन पार्ट. ओके, सो इफ वी डोंट फाइंड एनी एरर देन ऑप्शन नंबर 5 है हमारे पास. वी हैव टू चूज दैट वन. ध्यान रखिएगा, हमें पंक्चुएशन के एरर को फाइंड आउट नहीं करना है स्टूडेंट्स. ओके, सो क्वेश्चन कहता है हमारा, नेचर यूजेस ब्लर्ड बाउंड्रीज ऑल द टाइम, अवॉइडिंग अब्रप्ट इंटरफेसेस who are crack prone and require some kind of fastening together. Now, as soon as our focus is on this who, we know कि who relative pronoun हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स? Who is always used for referring any living person. Okay, any living thing. तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हु करेंगे. अदरवाइज आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है दैट वी आर यूजिंग इट राइट नाउ फॉर इंटरफेस. सो द राइट रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी विच. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सोच रहे थे आप. द आंसर इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर सी. Let's try out second question, everybody. Using the Faber, we could conceivably follow nature's design plans much more closely than we have ever been able to do. Now, most of the students might get stuck here. क्या लगेगा कि भाई मच और मोर एक साथ कैसे लगा हुआ है. वी नो दैट वी हैव टू यूज़ ओनली लाइक सिंगल जो है ना कंपैरेटिव्स हम यूज़ करते हैं या सिंगल हम सुपरलेटिव्स यूज़ करते हैं. तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है दैट वी आर यूजिंग डबल कंपैरेटिव्स? No, no, not at all, guys. If you are thinking that much is also another kind of comparative, no. Much is just being used here एज एन एडवर्ब. वो इंटेंसिटी बता रहा है. कंपैरेटिव डिग्री के लिए तो हमने सिर्फ मोर देन का ही इस्तेमाल किया है. सो डोंट मिस्टेक इट कि ये डबल कंपैरेटिव लगा हुआ है अगर हमने मच मोर लगाया है. डबल कंपैरेटिव कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स, लाइक मोर क्लोजर दैन. नाउ दिस इज डबल कंपैरेटिव. ये हमें नहीं लगाना है. जब हमने मोर लगा दिया तो फिर क्लोजर की ज़रूरत नहीं थी, और क्लोजर है हमारे पास तो मोर की ज़रूरत नहीं है. बट मच इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर एक्चुअली जा रहा है ऑप्शन नंबर ई के साथ. सो आई होप नाउ यू ऑल आर गोइंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ सच थिंग्स इन द एग्जाम. थर्ड क्वेश्चन है, let's read it together, everybody. As long as you can grow grain for yourself,
along with some other fruit and vegetables for the sake of nutrition balance and a more interesting diet, you will never starve from death. अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम है प्रिपोजिशन की. एज सुन एज यू सी starve from death. No, 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 not at all. Starve is always going to follow what? To. ये हमारा फिक्स प्रिपोजिशन का केस था. Like you know that addicted is always followed by to, different is always followed by from, right? तो वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि starve जो है वो फॉलो करता है किसको? अपने प्रिपोजिशन टू को. वी कैन नॉट इंटरचेंज इट विथ एनी अदर प्रिपोजिशन. तो गाइज आवर आंसर इज अकॉर्डिंगली गोइंग विद ऑप्शन नंबर डी. ओके, आई होप यू पीपल आर ऑल्सो मेकिंग नोट्स विद दीज क्वेश्चन. हो सकता है ये किसी और फॉर्म में किसी और सेंटेंस में आपसे पूछा जाए, बट दीज कंसेप्ट्स आर गोइंग टू बी eternal, we can say. Okay, another question is, things get really interesting when the plant changes their chemical profile. Guys, किसकी chemical profile change होने की बात कर रहे हैं? Whose? Plant. When plant is being singular, why are we using a plural pronoun? Not at all required here. तो हमें pronoun change करना है. Pronoun should be singular and we have a better option present, right? तो it's होना चाहिए instead of there. That's it. जैसे आपने एक बार पूरी सेंटेंस अगर अच्छे से पढ़ ली ना, सो 90 to 95% चांस है कि आपको एरर वहीं पर मिल जाएगा. इट्स नॉट वेरी हार्ड टू ट्रैक एक्चुअली गाइज, एंड लाइक क्वाइट अ गुड थिंग. अभी तो हम डिस्कशन करने के लिए ये ज़रूर समझ लेते हैं दैट इंस्टेड ऑफ देयर यहाँ क्या आ सकता था, बट एग्जाम में यू ओनली हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज नॉट करेक्ट. ओके, यू डोंट हैव टू सब्सटीट्यूट कि भाई कौन सी चीज़ से फिर ये करेक्ट करेंगे. सो यहाँ पे हमारी थोड़ी मेहनत बच जाएगी. चलिए, another one, everybody. Glutathione is regarded as one of the most important detoxification agent in the human brain. अब क्या दिक्कत लग रही है यहाँ पे? आपको एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी. वन ऑफ द इज ऑलवेज फॉलोड बाई प्लूरल नाउन. हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसे पहले से जानते होंगे. लेट मी गिव यू लाइक गुड एग्जाम्पल सो दैट यू कैन रिमेंबर. One of the students. So always we are going to refer a group जिससे मैं one को exclude करूँगी मान लो. तो ये वाला जो noun होगा student, that always need to be in the plural format, right? तो क्या लगता है आपको यहाँ पे हमारा noun plural है? नहीं, ये S जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन में ना लगकर होना चाहिए था एजेंट्स में, राइट? सो द राइट वे ऑफ पुटिंग दिस सेंटेंस शुड बी व्हाट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट detoxification agents. That should be my ideal way to write this term. तो क्या हुआ, मेरा नाउन जो है वो प्लूरल में आ गया एंड वन ऑफ द की कंडीशन को वो सेटिस्फाई भी कर रहा है. ओके, I hope we are all good till here. We are now proceeding towards another set of question, everybody, and that is regarding fillers. जैसा कि मैंने आपको बताया था that sometimes we are also expecting double fillers question. तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, so that's why I have brought these questions for you. Let's try and attempt these. Okay? ऐसा नहीं सोचना है कि दो blank है so questions will be quite difficult. When you will attempt these questions, you will realize that again बहुत अच्छी बात है, इस बार तो दो hint होगा हमारे पास. Okay? It seems that animals have a dash for what is good, dash them and actually crave it. अब क्या चीज़ हो सकती है? Animals have a mind for, animals have a ear. भाई अ के साथ तो ear नहीं जाएगा, ये तो ऑप्शन आउट हो गया हमारा. ओके, एनिमल्स हैव अ नोज फॉर, चलिए ठीक है. एनिमल्स हैव अ टंग फॉर, एनिमल्स हैव अ स्मेल फॉर. ओके, व्हाट इज गुड फॉर देम? क्या चीज़ें हो सकती है? फॉर आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल आएगा. तो ऑफ तो नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब ये ऑप्शन भी आउट हो गया. ना गाइज, माइंड, नोज एंड स्मेल, एनिमल्स के साथ माइंड को एसोसिएट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट गाइज? बिकॉज यही तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस को एक दूसरे से डिफर करती है. तो ए वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ से निकलता है. ओके, एनिमल्स हैव अ स्मेल फॉर, एनिमल्स के अंदर स्मेल होती है या एनिमल्स की क्वालिटी होती है स्मेल लेने की? दैट मीन्स दे हैव अ नोज फॉर, तो नोज उसको फैसिलिटेट करेगा बच्चे स्मेल लेने के लिए. सो वी हैव द बेस्ट पॉसिबल वर्ड फॉर दिस ब्लैंक इज नोज. ओके, चलिए,
जितना ज़्यादा हम एलिमिनेट करेंगे उतना ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई हमने करेक्ट आंसर चुना है एवरीवन. चलिए लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबडी. Far from being dash dependent on external food sources of antioxidants, our cells have their own dash ability to generate antioxidant enzymes on demand. मतलब हमारी सेल्स की खुद की एबिलिटी होती है. खुद की एबिलिटी के लिए हमारे पास बेहतर वर्ड है यहाँ पर इन्नेट. गाइस इन्नेट का मतलब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको पहले से बता दूँ, नेचुरल. इसे आप इनबॉर्न से भी याद रख सकते हैं, लाइक इननेट, इनबॉर्न, मतलब जो बचपन से ही शुरू से ही आपके पास हो. तो भाई इननेट वाले ऑप्शन को हम रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट कर देंगे. लेट्स एलिमिनेट दिस वन, एलिमिनेट दिस वन. ठीक है. अच्छा, अभी हमारे पास वर्ड है इंटायरली, पार्शियली एंड मॉडरेटली. तो भाई तीनों तीन चीज़ें बता रही हैं, तो आप ज़रा सोचो यहाँ क्या होना चाहिए. फार फ्रॉम बीइंग डैश डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फूड सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब हमें पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना पड़ेगा एक्सटर्नल फूड सोर्सेज के ऊपर. सो वी हैव द बेस्ट पॉसिबल आंसर हियर एज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है, क्योंकि पार्शियली और मॉडरेटली का हमें कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है. थर्ड क्वेश्चन एवरीबडी. आफ्टर अ प्लेन क्रैश इन अ रिमोट एरिया, your main dash for dash would be shelter, water and food. तो भाई ये चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट और रॉन्ग. तो चलिए देखते हैं. एग्जिस्टेंस वुड बी नो, लाइफ वुड बी नो, सर्वाइवल हमारे पास वर्ड है, लिविंग नहीं हो सकता था, लिवलीहुड तो बिल्कुल भी नहीं होगी भाई. तो एक ही वर्ड हमारा, और बस आप थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लो, प्रायोरिटीज़ के हमारे फर्स्ट ब्लैंक पे आ रहा है, पढ़ के देख लेते हैं. आफ्टर अ प्लेन क्रैश इन अ रिमोट एरिया, हमारा मेन प्रायोरिटी क्या होगा सर्वाइवल के लिए? शेल्टर, वाटर एंड फूड. एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस एवरीवन. बस ऑप्शन नंबर 3 वाज द राइट आंसर. इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? कितना बढ़िया आप झेल सकते हो किसी चीज़ को, हाउ वेल यू आर एबल टू टॉलरेट समथिंग, वो आपकी इंड्योरेंस बताती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओवर टाइम humanity has dash ever greater dash in controlling and commanding combustion harnessing fire. So humanity has accomplished ever greater mastery. अच्छा, हम accomplish mastery नहीं करते हैं, हम तो gain करते हैं mastery, है ना. तो ये contextually fit नहीं हो रहा है हमारा. Okay. Over time, humanity has gained ever greater efficiency. Okay, gained ever greater efficiency. Gain हम फिर से कोई position कर सकते हैं. Efficiency is not a physical thing to acquire. Okay, another one. Over time, humanity has expanded एवर ग्रेटर फ्यूटिलिटी. गाइस फ्यूटिलिटी इज़ अ निगेटिव वर्ड, ये तो इस पॉजिटिव सेंटेंस में फिट ही नहीं कर रहा है, ये आउट हो गया. ओके. ओवर टाइम ह्यूमैनिटी हैज़ ऑब्टेन्ड एफिकेसी. गाइस यहाँ पे भी अगर ऑब्टेन्ड होता तो हम सोच सकते थे, बिकॉज एफिशिएंसी एंड एफिकेसी आर सिनोनिमस टू ईच अदर. तो इट वॉज ऑल अबाउट ऑब्टेन्ड. तो क्या हम एफिकेसी यानी एफिशिएंसी ऑब्टेन कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. अच्छा, एक और वर्ड है हमारे पास, अचीव्ड प्रोफिशिएंसी. अब ये दो ऑप्शंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो काफ़ी क्लोज हैं हमारे क्वेश्चन के, राइट. चलिए तो अब ज़रा हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं. ह्यूमैनिटी जो है वो समय के साथ क्या किया है, इस कंट्रोल और कमांड किया है कंबशन हार्नेसिंग फायर को. मतलब यह एक ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर ह्यूमैनिटी ने कुछ स्किल्ड काम कर लिया है, राइट. द ह्यूमैनिटी इज़ बीइंग स्किल्ड इन दैट काइंड ऑफ वर्क. तो स्किल के सबसे नज़दीक वर्ड आपको कौन सा लग रहा है? एफिकेसी और प्रोफिशिएंसी. प्रोफिशिएंसी मीन्स गाइज एक्सपर्टीज, and expertise is the most closer option to your skill. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, डी नहीं होगा. सो इफ़ यू वर थिंकिंग कि डी में भी सब कुछ ठीक लग रहा है, तो
तो आपको हमेशा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स. आई होप वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. Let's try another one, most probably the last one. Stress is one of those concepts that dash understands, dash no one can easily define. क्या होता है ना, स्ट्रेस सब लोग समझते हैं बट कुछ ही लोग, देखो ये जो कहना ये चाह रहे हैं ना कि नो वन का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे करना है. क्यों? क्योंकि आप देखो उसी से मिलते जुलते प्रोनाउंस आपके यहाँ पे यूज़ हुए हैं. ठीक है. स्ट्रेस इज वन ऑफ दोज कंसेप्ट्स दैट एवरी वन अंडरस्टैंड्स येट नो वन कैन ईजिली डिफाइन. गाइस, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है. चलिए, बट सेकेंड वाले ब्लैंक में बट भी बहुत अच्छा लग रहा है ना. तो चलिए बट वाला ऑप्शन भी पढ़ के देख लेते हैं. स्ट्रेस इज वन ऑफ दोज कंसेप्ट्स दैट समवन अंडरस्टैंड्स. फिर से हम वही बता रहे हैं कि समवन मतलब हम किसी को रेफर कर रहे हैं, अज्ञात ही क्यों ना सही, वो इनडेफिनिट ही क्यों ना सही, बट हम किसी को रेफर कर रहे हैं. बट दिस इज अ जनरलाइज्ड सेंटेंस एवरीवन. ये किसी पर्सन स्पेसिफिक पर तो बात नहीं हुई है, तो ये सभी के लिए है. इसीलिए बेहतर ऑप्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए था कि स्ट्रेस इज वन ऑफ दोज कंसेप्ट्स जो सब लोग समझते हैं येट कोई भी इजीली डिफाइन नहीं कर पाता. सो दैट वाज आवर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डबल फिलर्स एवरीबडी. I hope these question का set would have helped you to understand what kind of questions we are expecting in the examination and what are the right strategies with which we are going to attempt these. एक बात और याद रखिएगा, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक मिलेगा जहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रैक्टिस. Please go ahead and attempt those assignment and we will be releasing the answers of that as well. बाकी अगर कोई भी डाउट हो, you can feel free to ask those doubts in the comment section everyone. So let's meet in another video. Till that time, please take care of yourself. Bye bye, take care.